Good afternoon, respected CEO sir, respected dignitaries, esteemed teachers, and my dear friends. How are you all? My name is Akshit Gusain and my course is EPC. So, आपका previous session कैसा था? It was good. Okay, now this session will be more interesting as we have Miss Princey Chokse ma'am with us. So, firstly give her a huge round of applause. So, ma'am, how are you? I'm very good. Okay, so I'll tell you about Princey ma'am. Princey ma'am has completed Advanced Precision Engineering in 2025 and has been awarded a certificate by the Honorable Chief Minister Dr. Mohan Yadav sir. Now मैम सबसे पहले तो जीएसपी में आके मैम कैसा लग रहा है? ये फीलिंग पुरानी जैसी है या दिस फीलिंग इज डिफरेंट नाउ? This is so new. Like I am so proud that I belonged here when I came in GSP first. Now this people are inviting me. Like GSP has do some so many valuable things for me. So it is very proud moment. I feel so grateful. Thank you so much for giving me this opportunity. That was great, ma'am. So, friends, the topic which we will discuss today is skills that matters today. ये बहुत familiar topic है. हम professional skills के बारे में जानेंगे और personal skills के बारे में जानेंगे. मैम अपना experience शेयर करेंगी कि balance कैसे रखें हम. So, it will be interesting. Stay tuned. So, shall we start? Yeah. So, ma'am, my first question to you is that आपके experience के according आज की fast growing industry में survive और grow करने के लिए कौन सा mindset सबसे ज़्यादा important है? I would like to say कि if you really want to grow in an industry, you must have the adaptability. आपको चीज़ें आपका जो mindset जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि मैं कहीं पे भी जाऊँ, I can do this. सबसे important यही है. Situation change होती रहेगी, तो आपको अलग-अलग opportunity मिलती रहेगी, पर आपका mindset होना चाहिए कि I can do this. I will definitely going to outshine there. You must represent yourself, your value that matters. So it is very important कि आप adaptability रखें, अपना जो aura है उसे positive रखें. That was interesting. That was very interesting. My next question to you is that आज के workplace में technical skills और soft skills का balance आप कैसे देखती हैं और long run में कौन सी skills सबसे ज़्यादा important होती है? दोनों स्किल मैटर करती है. एज यू नो कि टेक्निकल स्किल हमें आगे अपनी करियर ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होती है. सेम हमें सॉफ्ट स्किल्स भी सेम तरीके से ही इम्पॉर्टेंट होती है. लाइक मैं अपनी कंपनी में जीटी हूँ, ठीक है, और मेरा एकदम प्लांट शिफ्ट हुआ है, न्यू प्लांट है. तो मुझे जब ऐसे असाइन किया गया, मेरे जो मैनेजर हैं वो ऐसे दे देते हैं कि तुम जीटी हो, डजंट मैटर. वो मुझे ऐसे काम देंगे जो मेरे सीनियर इंजीनियर कर रहे होते हैं. तो वो बोलते हैं कि यू कैन हैंडल दिस, आई नो योर एटीट्यूड. दैट मीन्स ही इज एनालाइजिंग माई सॉफ्ट स्किल. ही नोज आई कैन डू दिस. टुवर्ड्स माई अडेप्टेबिलिटी, माई एटीट्यूड, ही नोज कि आई कैन डू दिस. So when our plant was shifting, all the machine was shifting to other plant, he only give me this role कि you have to do this. कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगा. If you really need me, I am here. So I have to manage all that thing. So that duration I realized कि I am capable. My soft skill is outshining me. Like he knows कि I can do this. That because कि मैंने उनको ऐसा present किया कि I can do this. You just have to give me. और एक कहावत है कि love what you do or do what you love. So that is very important for me in this field. I am doing that right now, and I love what I do. So I will say communication skill is matter as well as technical skill. Technical skill तो differentiate करेगी. अलग-अलग इंडस्ट्रीज में अलग-अलग चीज़ें होती है. जैसे मेरी इंडस्ट्री में केजेस बनते हैं, बुशेस बनते हैं, डिपार्टमेंट अलग-अलग है. ये डिफरेंशिएट करेगा, ये वेरी करेगा. आपको अलग-अलग चीज़ें सीखनी पड़ेगी. टेक्निकली आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, बट सॉफ्ट स्किल आपको आउटशाइन करने में रियली हेल्पफुल रहेगी. सो आई विल से कि आप सॉफ्ट स्किल इनहेंस करें. I really like how you explained it, ma'am. Audience, सुना आपने? So एक बार ताली बजाइए मैम. My next question to you is that आपके करियर के स्टार्टिंग फेज में ऐसी कौन सी स्किल्स थी जिसने आपको स्टैंड आउट करने में हेल्प करी थी? ये क्वेश्चन सर अभी सबको अच्छा लगेगा क्योंकि स्टार्टिंग फेज में कौन सी स्किल्स थी मैम बताएंगे कि जिसने स्टैंड आउट करने में हेल्प करी थी मैम?
I will say that will be my communication skill. Also, the way I present myself to others. When I just on my first day, it was like I was very nervous, anxious. कि what should I do? I don't know what to do. और उसमें ऐसा लगता है कि मैं आ गई हूँ, मुझे नहीं पता कि अब मुझे क्या करना है. यहाँ पे सब कुछ अलग है. तो फर्स्ट टाइम उनको ऐसा था कि मेरा लर्निंग एटीट्यूड है ऐसा टुवर्ड्स, मतलब कि आई एम वेरी क्यूरियस पर्सन, आई वांट टू नो एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग देयर, दे विल गिव मी द इंट्रोडक्शन. सो इट वाज वेरी ग्रेट कि या सब चल रहा है, धीरे धीरे सीखना चाहिए. तो अडाप्टेबिलिटी जो मैंने आपको पहले भी बताया है उसने मुझे हेल्प किया. लर्निंग एटीट्यूड जो कि सबसे ज़्यादा मैटर करता है, तभी आप कुछ सीख पाओगे. आपको ऐसे ओपन माइंडेड रहना है कि नहीं, ऐसा नहीं कि मुझे सब आता है. कभी कुछ किसी को सब नहीं आता है. लोग डिफरेंट स्टेज पे रोज सीख रहे होते हैं. सो दैट यू हैव टू नो कि आपको करना ही है. सो मैं यही कहूँगी कि आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो लर्निंग होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और इट्स लाइक कि यू हैव टू डू इट वाला. सो Thank you, ma'am. This make a lot of sense today, especially. So, ma'am, my next question to you is that ऐसी कौन सी skills हैं जो almost आप अपने work place में हमेशा use करती हैं? So in my workplace, most of the time I have to do it in team. So the skill that mostly matters, team play. कि how you are managing your team, how you are doing your work with others, and also the communication skills. Communication skills matter because what you are saying सामने वाले को वो समझ आना चाहिए. आप जो कह रहे हो अगर वो समझेगा नहीं तो वो करेगा ही नहीं. मुझे शॉप फ्लोर मैनेज करने के लिए जब मुझे बोला जाता है एज अ सुपरवाइजर, तो मुझे उस सामने वाले को बताना है कि मुझे ये इतना चाहिए है. और अगर आपको प्रॉब्लम, आपका एटीट्यूड मैटर करता है वहाँ पे. वो ऐसे आपने ऑर्डर दे दिया कि ये मेरे को चाहिए, तो ही विल नॉट गोइंग टू लिसन ना. ऑब्वियसली वहाँ पे वो मुझसे एज वाले लोग हैं, दे आर वेरी सीनियर टू मी एंड आई हैव टू गिव द ऑर्डर. तो इट मैटर्स कि मैं कैसे डिलीवर करूँ. तो जब मुझे ऐसा करना होता है तो मैं वैसे रहती हूँ कि ठीक है, मुझे उनके हिसाब से बताना है कि आपको मुझे ये करना है, ये नया वाला पार्ट चलने वाला है, और आपको जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी होगा तो आप मुझे बताएं. तो ऐसा मुझे डिलीवर करना होता है उनको. तो दैट मीन्स कम्युनिकेशन स्किल्स दैट एक्चुअली मैटर. और उसके बाद मैं मेरे सीनियर्स के साथ भी हूँ, तो हमें मैनेज करना होता है कि दिस कस्टमर का रिक्वायरमेंट हमारा ये है, सो वी हैव टू प्रोवाइड दैट. मैं प्रोडक्शन में हूँ, तो ये वी हैव टू डू इट वाली चीज़ हो जाती है कि हमें अपना टारगेट अचीव करना ही है. तो मेरी टीम ऐसे डिस्कशन होता है, तो यू हैव टू इनिशिएट, क्योंकि हम नए लोग हैं तो उनको अच्छा लगता है कि यू हैव मतलब क्रिएटिव थिंकिंग. तो आपके पास नए आइडियाज़ होते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वी रियली वांट टू नो कि ये हमारा सॉल्यूशन है, व्हाट यू थिंक. वो मुझसे पूछते हैं व्हाट यू थिंक प्रिंसी, कि अगर हम इसकी जगह ऐसे किया जा सकता है, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे आइडियाज़ क्या है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट मैटर्स. Okay, ma'am, that was a practical answer. So, my next question to you is that how your day goes in Harsha Engineers, as you are in Harsha Engineers, how your day goes there, and what all responsibility you handle there, and how you manage your work and your routine there. Okay, this is very interesting question. I would like to say कि मेरा नया प्लान है, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है उसके लिए, और बाकी सबकी जो शिफ्ट वाइज काम करते हैं, मैं जनरल शिफ्ट में जाती हूँ. इस 9 to 5. और जो मेरे मैनेजर हैं, मेरे सीनियर्स हैं, उनको सुबह सुबह जाना होता है. तो वो मेरे लिए थोड़ा एकदम अलग हो जाता है कि जब तक मैं पहुंचूंगी वो लोग प्रिपेयर रहते हैं मेरे लिए कि ये काम है जो हमें इसको देना है. और एज अ जीईटी मेरा ऐसा रोल मतलब प्रॉपर नहीं है कि मुझे सिर्फ यही काम करना है. आई हैव टू मैनेज. मुझे कभी कभी एडमिन वाले काम देखने भी होते हैं कि प्रॉपर शॉप फ्लोर में चीज़ें चल रही है कि नहीं, मतलब जो वर्कर्स हैं उनको चीज़ें मिल रही है कि नहीं प्रॉपर. तो वो सारी चीज़ें भी मुझे देखनी होती है. तो मैं अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ काम करती हूँ. तो जब मैं एंटर करती हूँ वहाँ पे, तो मेरे मैनेजर बिल्कुल रेडी रहते हैं. तो फर्स्ट आई हैव टू जस्ट पिक माई डायरी एंड गो टू हिज कैबिन. देन ही विल असाइन मी टास्क कि प्रीवियस टास्क कंप्लीट हुआ है कि नहीं. मेरी चेकलिस्ट रहती है. आई हैव टू राइट इट डाउन एवरी सिंगल थिंग वट एवर दे आस्क मी, because it is very important. You have to do it. If you write, you will going to solve the problem and everything. So first मैं एंटर करती हूँ, फिर वो मुझे सारे ऐसे चेकलिस्ट करते हैं कि ये करना है, इससे बात करनी है, डिज़ाइन वालों का लिखना है. हाँ, टू डू लिस्ट. आई हैव टू फॉलो द टू डू लिस्ट. फिर उसके हिसाब से मैं अपना डे फ्रेम करती हूँ कि दिस में लंच से पहले मुझे इतना काम करना है. मुझे बाकी डिपार्टमेंट्स का भी देखना होता है कि
कब वो लोग फ्री रहेंगे, और ये आपके ऊपर है कि हाउ यू आर डूइंग दिस, कि आप किसी को भी फ़ोन कर दोगे गलत टाइम पे तो वो आप पे चढ़ जाएगा कि नहीं ऐसे कैसे फ़ोन कर दिया, वो आपका काम बनते बनते रह जाएगा। तो मुझे वो जो टू डू लिस्ट रहती है उसके हिसाब से मैं अपना दिन प्लान करती हूँ कि लंच से पहले मैंने यहाँ बात करी, फिर उसके बाद फिर मैं वेंडर्स वगैरह से अगर मुझे बात करनी होती है तो मैं लंच के बाद का टाइम रखती हूँ। तो उसके हिसाब से मैं अपना डे फ्रेम करती हूँ। इन द एंड आई हैव टू मतलब आफ्टर 3 PM आई एम द ओनली वन हु मैनेज मतलब इन स्टाफ आई एम द ओनली वन हु स्टेज एट 5। तो उस ड्यूरेशन पे मुझे सुपरवाइजर्स जो रहते हैं, शिफ्ट इंजीनियर्स जो रहते हैं, उनकी भी वो रहता है कि मेरे मैनेजर ने जो दिया है वो तो मुझे करना ही है, उसके अलावा भी जो सुपरवाइजर्स हैं उनके टास्क रहते हैं जो मुझे कंप्लीट करने होते हैं, जो प्रॉपर ऐसा है कि मैं मुझे ही कर देंगे वो, तो वो सारी चीज़ें भी देखनी होती है। तो ओवरऑल द डे वाज वेरी इंटरेस्टिंग। आई रियली मतलब एवरी डे आई हैव टू डू अ न्यू थिंग, तो इट इज वेरी गुड। ओके मैम, दैट वाज क्लियर। मेरे पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं पर टाइम कम है, तो मैं सबसे पहले मैम के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि मैम इज़ अ डिफेंस एस्पिरेंट. Ma'am has given 8 times SSB, so she's a hardcore repeater. So first of all, give her a huge round of applause. Ma'am, आपने अपनी B.Tech 2022 में कंप्लीट करी थी, and you came in GSP in 24, and in 25 you have been passed out. So अभी हमारा प्लेसमेंट सेशन स्टार्ट हो जाएगा मैम, तो उसमें यहाँ पे बहुत सारे डिफेंस एस्पिरेंट बैठे हुए हैं और जो गवर्नमेंट की भी तैयारी कर रहे हैं. तो मैम इंटरव्यू विल आस्क कि आपने 22 से 24 तक आप fully you are preparing for SSB. Yeah. So how you manage that? What was your answer at that time? How you defend yourself? ये क्योंकि सबको आंसर देना पड़ेगा इंटरव्यू में. So मैम इसका आंसर बताइए मैम. Okay, what I have given was मेरे मैनेजर ने भी मतलब मेरे जो इंटरव्यूअर थे वही मेरे मैनेजर है, उन्होंने भी मुझसे सेम क्वेश्चन पूछा था कि तुम्हारा बीटेक हो चुका था कि फिर तुमने 1 साल का गैप लिया उसके बाद तुमने ज्वाइन किया है, जो कोर्स किया उसके बाद प्लेसमेंट हुआ. तो आई वॉज प्रिपेयरिंग फुल्ली प्रिपेयरिंग फॉर SSB, ट्यूशंस, कोर्सेज, CDS, FCAT, एवरीथिंग. आई वॉज टोटली डेडिकेटेड कि बस यही है मेरे जीवन में, मुझे डिफेंस में ही जाना है, उसके अलावा मुझे कहीं नहीं जाना है. पर उस ड्यूरेशन में मैंने GSP के लिए इनरोल भी किया हुआ था. तो जब मैंने उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि सर दैट टाइम आई वाज थिंकिंग कि मुझे बस यहाँ जाना है, मुझे कहीं और सोचना भी नहीं है, मैं जाना ही नहीं चाहती हूँ. तो ही वाज लाइक कि फिर यहाँ क्यों आए. मैंने बोला कि मैंने ट्राई किया, ऐसा नहीं है कि मैंने बीच में गिव अप करके ये कर लिया, मैंने ट्राई किया. फिर मैंने कोर्स पे इनरोल किया, SSB क्लियर नहीं हो रहे थे, कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे थे, कभी मेडिकल नहीं हो पा रहा था. तो आई वाज वेरी मतलब डिसअपॉइंटेड कि मैं कुछ कर भी पाऊंगी कि नहीं. नेवर डाउट योरसेल्फ, व्हाट आई डिड, सो आई विल सजेस्ट यू. तो उस टाइम पे मैं बहुत ऐसे वो कहते हैं ना डिप्रेस्ड हो चुके हो आप कि क्या करोगे. दैट टाइम ऐसे GSP के लिए मैं शॉर्ट लिस्ट हुई, तो मैंने ज्वाइन किया कि ठीक है आई विल कंटिन्यू दिस कोर्स एंड एज वेल एज आई विल प्रिपेयर फॉर SSBs. सो ड्यूरिंग दैट टाइम मैंने उनको बताया कि सर मैंने जब कोर्स ज्वाइन किया आई गेट मतलब मेरा इंटरेस्ट आने लगा उस पर. फिर मैं उससे मेरा जो डिफेंस वाला पार्ट है वो भी इनहेंस हो रहा था. बट जब मैंने कंटिन्यू किया तो मेरा इंटरेस्ट डिफेंस से थोड़ा कम होने लगा और मैं बिल्कुल ऐसा हो गया कि आई वांट टू डू दिस नाउ, क्योंकि ये तो नहीं हो रहा है मुझसे. एंड मतलब आप अगर ड्रॉप लेते हो तो यू नो फैमिली प्रेशर, योर मतलब मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छी अच्छी जगह प्लेस हुए थे. तो आई वाज लाइक कि मेरा कुछ पर्पस ही नहीं है, मैं क्या करूँगी, डिफेंस भी नहीं हो रहा. अब डिफेंस को ही सब कुछ मान रखा था मैंने. तो GSP gave me the life. Now I want to do something new. तो मैंने उनको ये चीज बताई थी. You still have attempts left or not? Yeah, I do still have You attempts. will go or not? I'm going. I thought I will give up, but still I am going. My manager and my team उन्होंने कहा कि you should go at least once. If you really want to do it, you should not give up. Which I thought that I would give up. So I will go. This will be my last question only because अब time नहीं बचा है. So thank you so much ma'am for coming here. It's been a pleasure to meet you and to be in front of you. Thank you so much for coming. Thank you.